منصورہ کے پاس خنجر تھا. اس نے خنجر زنی کی تربیت موصل میں اپنے باپ سے لی تھی، لیکن وہ صرف تربیت تھی، دشمن سے کبھی مقابلہ نہیں ہوا تھا. یہ دشمن تنومند مرد تھا. کیا منصورہ اسے زیر کر کے پکڑ سکے گی؟ وہ سوچتی گئی اور تیز چلتی گئی. آذر اچانک رک گیا اور اس نے پیچھے دیکھا. منصورہ کے قریب ایک درخت تھا. وہ پھرتی سے درخت کی اوٹ میں ہو گئی. درخت کے ساتھ جگہ ذرا بلند تھی اور وہاں پتھر تھے. منصورہ کا پاؤں پتھروں پر پھسلا اور وہ گر پڑی. رات کے سکوت میں پتھروں کی آواز بہت اونچی سنائی دی. آذر پیچھے کو آیا. منصورہ نے اسے آتے دیکھ لیا. وہ اٹھی نہیں، درخت کے پیچھے بیٹھ گئی اور آذر کو دیکھتی رہی. اس نے خنجر نکال لیا. آذر درخت کے بالکل قریب آ گیا تو منصورہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی. آذر درخت سے ذرا آگے ہوا تو منصورہ نے اس کے پاؤں پر جھپٹا مارا اور اس کے دونوں ٹخنے پکڑ لیے. وہ اب پیٹ کے بل تھی. اس نے پوری طاقت سے آذر کے ٹخنے پیچھے کو کھینچے. وہ منہ کے بل گرا. دوسرے لمحے منصورہ اس کی پیٹھ پر گھٹنے رکھ چکی تھی اور اس کے خنجر کی نوک آذر کی گردن پر تھی. یہ عمل 2-3 سیکنڈ میں مکمل ہو گیا. ایک لڑکی ایک ہٹے کٹے جوان کو اپنے گھٹنوں اور جسم کے تمام تر وزن سے بے بس نہیں کر سکتی تھی، لیکن گردن پر خنجر کی نوک نے آذر کو حرکت نہ کرنے دی. اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پرے جا پڑی. کون ہو تم؟ آذر نے پیٹ کے بل بے بس پڑے ہوئے پوچھا. جس کے ہاتھ سے تم بچ کر نہیں جا سکو گے، منصورہ نے جواب دیا. تم عورت ہو؟ ہاں، منصورہ نے جواب دیا. میں عورت ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہو. میرا نام منصورہ ہے. او پاگل لڑکی، آذر نے ہنس کر کہا. تم نے کیا مذاق کیا ہے؟ میں تو ڈر ہی گیا تھا. ہٹو، اترو. اپنا خنجر ہٹا لو، میری کھال میں اتر رہا ہے. یہ مذاق نہیں آذر. تم کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم میں کسی اور لڑکی کے پیچھے تو نہیں جا رہا، آذر نے دوستانہ لہجے میں کہا. تم سے زیادہ اچھی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں. میں تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا. مجھے نہیں، تم میری قوم کو دھوکہ دینے جا رہے تھے، منصورہ نے کہا. تم مجھے سب سے زیادہ اچھی لڑکی سمجھتے تھے اور میں نے تمہیں سب سے زیادہ اچھا مرد سمجھا تھا، مگر اب نہ میں تمہارے لیے اچھی ہوں نہ تم میرے لیے. فرض نے جذبات پر مہر ثبت کر دی ہے. تم اپنا فرض ادا کرنے چلے تھے، میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں. اگر تم میرے خاوند ہوتے، میرے جسم اور روح کے مالک اور میرے بچوں کے باپ ہوتے تو بھی میرا خنجر تمہاری گردن پر ہوتا. تم نے مجھے کیا سمجھ کر گرا لیا ہے؟ آذر نے پوچھا. نام کا مسلمان اور صلیبیوں کا جاسوس، منصورہ نے کہا. تم صلیبیوں کے دوستوں کو بتانے جا رہے ہو کہ احتیاط سے حملہ کرنا اور قرون کے اندر نہ آنا. تم گنوار لڑکی کیا جانو جاسوس کسے کہتے ہیں؟ آذر نے کہا. میں دشمن کو دیکھنے جا رہا تھا. میں جانتی ہوں جاسوس کیسے ہوتے ہیں، منصورہ نے کہا. میں بہت بڑے جاسوس کی بیٹی ہوں. ابن المخدوم کے قبوری کا نام کبھی سنا ہے؟ وہ موصل کے خطیب تھے. میں ان کے گروہ کی جاسوس ہوں. میں نے اپنے باپ کو موصل کے قید خانے کے تہ خانے سے نکلوا کر فرار کرایا اور خود ان کے ساتھ موصل سے فرار ہو کر آئی ہوں. تم مناڑی جاسوس ہو. تجربہ کار جاسوس دور جا کر باتیں کیا کرتے ہیں، کسی کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کر راز کی باتیں نہیں کیا کرتے. تم رضاکار بن کر آئے تھے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے اوپر سے اٹھو، آذر نے کہا. خنجر ہٹاؤ، میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. تمہاری زبان آزاد ہے، منصورہ نے کہا. کہو، ضروری بات کہو، میں سن رہی ہوں. آذر خاموش ہو گیا. اس کا جسم بے حس ہو گیا. اس نے ماتھا زمین سے لگا دیا. منصورہ کے سامنے اب یہ مسئلہ آ گیا کہ اسے باندھے کیسے اور وہاں سے کس طرح لے جائے. اگر اسے قتل کرنا ہوتا تو اس کے لیے مشکل نہیں تھا. وہ اسے زندہ سلطان ایوبی کے پاس لے جانا چاہتی تھی. چونکہ وہ خود جاسوس کے گروہ کے ساتھ رہ چکی تھی، اس لیے جانتی تھی کہ جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے. اسے یہ خیال آیا کہ ارد گرد کہیں اپنے سپاہی ہوں گے. اس نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، کوئی ہے تو پہنچو، آؤ آؤ. پھر اس نے آہو یا آؤ کی آوازیں بلند کی. آذر جو بے حس ہو گیا تھا اچانک اتنی زور سے اچھلا کہ منصورہ جو اس کی پیٹھ پر گھٹنے دبا کر بیٹھی ہوئی تھی لڑک کر ایک طرف جا پڑی. آذر تلوار کی طرف لپکا. منصورہ نے بجلی کی تیزی سے اٹھ کر آذر کو پیچھے سے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ آگے کو گرا. منصورہ نے تلوار اٹھا لی. آذر دوڑ پڑا. اس کے لیے مقابلہ کرنے کی بجائے نکل بھاگنا زیادہ ضروری تھا. منصورہ شور مچاتے اس کے پیچھے دوڑی. اس کے پاؤں میں بلا کی تیزی آ گئی تھی. دور کہیں گشتی سنتری گشت کر رہے تھے. انہیں منصورہ کا واویلا سنائی دیا تو دوڑے آئے. آگے ندی تھی. آذر کو رکنا پڑا. منصورہ پہنچ گئی اور دونوں سنتری بھی پہنچ گئے. آذر نے ندی میں چھلانگ لگا دی. منصورہ چلائی، جانے نہ دینا، جاسوس ہے، زندہ پکڑو. سنتری بھی ندی میں کود گئے اور آذر کو پکڑا اور آذر پکڑا گیا. اسے باہر لائے لیکن ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے. وہ سمجھے کہ یہ کوئی اور گڑبڑ ہے. ان کے پوچھنے پر منصورہ نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور محاذ پر کس طرح پہنچی ہے اور یہ آدمی رضاکار بن کے آیا ہے لیکن مشتبہ ہے. اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے چلو. سنو میرے دوستو، آذر نے سنتریوں سے کہا، تمہیں یہاں کیا ملتا ہے؟ چند سکوں اور دولت کی روٹی کی خاطر مرنے آئے ہو. میرے ساتھ چلو، شہزادے بنا دوں گا. اس جیسی لڑکیوں کے ساتھ شادی کراؤں گا. دولت سے مالا مال کر دوں گا. ہم تمہارے ساتھ چلیں گے.
एक संतरी ने कहा, पहले तुम हमारे साथ चलो। तुम भी चलो लड़की, वहां जाकर देखेंगे कि ये जासूस है या तुम भी जासूस हो, या दोनों इधर बदमाशी के लिए आए थे। सुल्तान अय्यूबी के खेमे से थोड़ी ही दूर हसन बिन अब्दुल्ला का खेमा था। संतरी आज़र और मंसूरा को अपने कमांडर के पास ले गए। कमांडर उन्हें हसन बिन अब्दुल्ला के पास ले गया, उसे जगाया और आज़र को उसके हवाले कर दिया। मंसूरा ने हसन बिन अब्दुल्ला को तमाम तर रुईदात सुना दी, ताक़ुब की तफसील भी सुनाई। हसन बिन अब्दुल्ला ने मंसूरा को गौर से देखा और पूछा, तुम्हारा चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं, तुम शायद मूसल से फरार होकर आई थी। तुम्हारे साथ मूसल के खतीब इब्न अल मख्तूम भी थे, मैं उनकी बेटी हूँ। मंसूरा ने कहा, तुमने मेरी हैरत खत्म कर दी है। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, हमारी लड़कियां तुमसे ज्यादा दलेर हो सकती हैं, लेकिन ये ज़हानत कम ही पाई जाती है जिसका मुजाहिरा तुमने किया है। मुझे मोहतरम वालिद ने तरबियत दी थी। मंसूरा ने कहा, मेरे कानों में सिर्फ 2 जुमले पड़े और मैं समझ गई कि ये क्या मामला है। आज़र की जामा तलाशी ली गई, उससे कागजात बरामद हुए। उन पर निशान लगे हुए थे जो सुल्तान अय्यूबी की फौज की पोजीशनें जाहिर करते थे। कागजों पर टेढ़ी टेढ़ी लकीरें थीं। ये कुरून हम्माद का खाका था। साफ मालूम होता था कि सुल्तान अय्यूबी का मुकम्मल दिफाई प्लान दुश्मन के पास जा रहा था। आज़र भाई, हसन बिन अब्दुल्ला ने आज़र को कागजात दिखाते हुए कहा, इनके बाद किसी शक की गुंजाइश रह गई है तो बता दो, फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। अगर बेगुनाह हो तो बोलो, मुझे यकीन दिलाओ तुम मुसलमान हो। खुदाए जुल जलाल की कसम, हसन बिन अब्दुल्ला ने उसके मुंह पर सीधा घोंसा इस कदर जोर से मारा कि आज़र कई कदम पीछे पीठ के बल गिरा। हसन ने धीमी मगर कहर आलूद आवाज में कहा, जासूसी काफिरों की करते हो और कसम हमारे खुदा की खाते हो। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम जासूस हो या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ तुम्हारे जितने साथी हैं उनके नाम बताओ और बताओ कि वो कहाँ कहाँ हैं। मैं मुसलमान हूँ। आज़र ने इल्तिजा की, सब कुछ बता दूंगा, मुझे बख्श दो, मैं अगली सफ में लड़ूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, अब तुम मुझ पर अपनी कोई शर्त नहीं ठोंक सकते। वो हट का पक्का मालूम होता था। बोला, मैं अकेला ही हूँ। इस लड़की ने तुम्हारे खैमे में जिस दूसरे आदमी की बातें सुनी थी वो कौन था? मैंने उसे पहचाना नहीं था। आज़र ने जवाब दिया, वो अंधेरे में आया और अंधेरे में चला गया था। हसन बिन अब्दुल्ला ने अपने 2 आदमियों को बुलाया और कहा, इसे ले जाओ और पूछो कि इसके साथी कौन है और कहाँ हैं। उसने मंसूरा से कहा, तुम जाकर सो जाओ, फजर की नमाज के बाद तुम्हें बुलाएंगे। सुल्तान अय्यूबी जब फजर की नमाज पढ़कर आए तो हसन बिन अब्दुल्ला उनके साथ था। उसने सुल्तान अय्यूबी को बताया कि खतीब इब्न अल मख्तूम की बेटी ने रात एक जासूस पकड़ा है। उसने सारा वाकया सुनाया तो सुल्तान अय्यूबी ने कहा, इस्लाम की बेटियों का यही किरदार था। अगर हमने अपने कलमा गो दुश्मनों को खून से लिखा हुआ सबक न पढ़ाया तो वो कौम की बेटियों का किरदार खत्म कर देंगे। वो जासूस कहाँ है? अभी आप उसे न देखें। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, मैं उसका सीना खाली कर लूँ तो उसे आपके पास ले आऊंगा। खूबरू जवान है, अपने आप को दमिश्क का बाशिंदा कहता है, यहाँ रजाकार बन के आया था। उस वक्त आज़र एक दरख्त के टहन के साथ उल्टा लटका हुआ था। उसका सर जमीन से 1.5 गज ऊपर था। नीचे अंगारे दहक रहे थे। एक सिपाही थोड़ी थोड़ी देर बाद आग में कुछ फेंकता था जिसके धुएं से आज़र तड़पता और खांसता था। हसन बिन अब्दुल्ला ने उसे नीचे उतरवा दिया। उसकी आंखें सूज गई थीं, सारा खून चेहरे पर आ गया था। वो खड़ा न रह सका, थोड़ी देर गशी की हालत में जमीन पर पड़ा रहा। उसके मुंह में पानी टपकाया गया। उसने आंखें खोली तो हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, ये बिस्मिल्लाह है, नहीं बोलोगे तो तुम्हारा एक एक जोड़ अलग किया जाएगा। उसने पानी मांगा। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, दूध पिलाऊंगा, मेरे सवाल का जवाब दो। और उसने एक सिपाही से कहा, दूध ले आओ और एक घोड़ा और एक रस्सा भी ले आओ। रस्सा इसके पांव के साथ बांधकर घोड़े के साथ बांध दो। आज़र ने 2 नाम बता दिए। ये दोनों रजाकार थे। इनमें रात वाला आदमी भी था। उसने दमिश्क के अड्डे की निशानदही भी कर दी। हसन बिन अब्दुल्ला ने उसी वक्त दोनों रजाकारों को पकड़ने का हुक्म दे दिया और आज़र को सुल्तान अय्यूबी के पास ले गया। कहाँ के रहने वाले हो? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। दमिश्क का। किसके बेटे हो? आज़र ने एक जागीरदार का नाम बताया। मैं शायद उसे जानता हूँ। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, वो दमिश्क में है। जब अल-मुल्क साले की फौज दमिश्क से भागी थी तो वो भी हलब चला गया था और तुम्हें जासूसी के लिए पीछे छोड़ गया था। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं खुद ही दमिश्क में रह गया था। आज़र ने कहा, मेरे बाप ने एक आदमी के हाथ हलब से पैगाम भेजा था कि मैं जासूसी करूं। मुझे पूरी हिदायत मिली थी। उसने हाथ जोड़कर सुल्तान अय्यूबी से इल्तिजा की, मैं मुसलमान हूं, मुझे मेरे बाप ने गुमराह किया था, मुझे अपने साथ रख लें, मैं इस गुनाह का कफारा अदा कर दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं अल्लाह के कानून में दखल नहीं दे सकता। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि वो कौन सा मुसलमान मर्द है जिसके हाथ से एक औरत ने तलवार गिराई और उसे पकड़ लिया है। तुमने यहाँ क्या क्या देखा है? मैंने यहाँ बहुत कुछ देख लिया था, आज़र ने कहा। बाकी मालूमात मेरे इन 2 साथियों ने दी थी जो यहाँ पहले से मौजूद थे। मुझे ये कहा गया था कि ये देखूं कि मंजनीक़ें और तीरंदाज कहाँ हैं। मैंने ये देख लिए थे। तुमसे पहले तुम्हारा कोई साथी ये मालूमात लेकर गया है? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। नहीं, आज़र ने जवाब दिया, हम तीनों के सिवा यहाँ कोई और नहीं। तुम्हें एहसास है कि तुम कितने खूबरू और वजी जवान हो? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा।
और क्या तुम जानते हो कि एक लड़की ने तुम्हें किस तरह गिरा लिया था? अगर वो पीछे से मेरे दोनों टखने न पकड़ लेती तो मैं ना गिरता, तुम फिर भी गिर पड़ते, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। जिनका ईमान फरोख्त हो चुका होता है वो बड़ी आसानी से गिरा करते हैं और वो तुम्हारी तरह मुंह के बल गिरा करते हैं। तुम हक वालों और ईमान वालों के साथ होते तो 10 काफिर भी मिलकर तुम्हें ना गिरा सकते। असल कुव्वत बाजू और तलवार की नहीं, ईमान की होती है। मुझे एक मौका दें, आजर ने कहा। इसका फैसला दमिश्क का काजी करेगा, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। मैं तुम्हारे साथ ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि तुम मुसलमान के बेटे हो, तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए था, मगर तुम उधर चले गए। मैं जानता हूं दमिश्क की 2-4 लड़कियां तुम्हारी मोहब्बत का दम भरती होंगी। चेहरे और जिस्म के लिहाज से तुम इस काबिल हो कि लड़कियां तुम्हें पसंद करें, लेकिन अब वो लड़कियां तुम्हारे मुंह पर थूकेंगी। खुदा ने भी तुमसे नजरें फेर ली हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता कि दमिश्क के मोहतरम काजी तुम्हें क्या सजा देंगे। अगर वो सजाए मौत दें तो जितनी देर जिंदा रहो अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश मांगते रहना, कम अज कम मरने से पहले मुसलमान हो जाना। मेरे बाप को कौन सजा देगा? आजर ने गुस्से से कहा। इस गुनाह की तरगीब मुझे मेरे बाप ने दी थी। उसने मेरे दिल में दौलत का लालच डाला था, उसने मेरे दिल से ईमान निकाला था। अल्लाह का कानून उसे नहीं बख्शेगा, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। दौलत का नशा आर्जी होता है, ईमान की कुव्वत मरकर भी खत्म नहीं होती। मेरी एक अर्ज सुन लें, आजर ने कहा। मेरा बाप कोई दौलतमंद इंसान नहीं था, दौलत का परस्तार था। मेरी 2 बहनें जवान हुई तो उसने दोनों को 2 उमरा के हवाले कर दिया और दरबार में जगह हासिल कर ली। उसने अपनी बेटियों के बहुत ज्यादा कीमत वसूल की, फिर वो मुखबरी और गीबत करने लगा। मुझे भी उसने इसी काम पर लगाया और मेरे दिल में दौलत का लालच पैदा कर दिया। नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद मेरे बाप ने और ज्यादा ऊंची हैसियत हासिल कर ली। वो तजर्बाकार साजिशी जोड़ तोड़ का माहिर हो गया था। इस वक्त तक वो खासी जागीर हासिल कर चुका था। आपकी फौज आई तो अल-मुल्कुस सालेह और उसके दरबारी उमरा और जागीरदार दमिश्क से भाग गए। उनमें मेरा बाप भी था। मैं किसी इरादे के बगैर ही दमिश्क में रह गया था। कुछ दिनों बाद हलब से एक आदमी आया। वो मेरे बाप का पैगाम लाया था कि मैं जासूसी का काम शुरू कर दूं। वो आदमी मुझे दमिश्क में ही उस अड्डे पर ले गया जिसकी मैंने निशानदही की है। वहाँ मुझे बहुत सी रकम दी गई और 2-3 दिनों में ये भी बता दिया गया कि मुझे क्या करना है और किस तरह करना है। मैं इस गिरोह में शामिल हो गया। खूब ऐशो इशरत की। एक रोज़ हमारे सरगना ने हमें कहा कि महाज पर रजाकार जा रहे हैं, 3-4 आदमी उनमें शामिल हो जाओ। हम 3 आदमी शामिल हो गए तो पहले ही यहाँ आ चुके थे। फिर मुझे हुक्म मिला कि मैं भी यहाँ आऊँ और आपकी फ़ौज की सारी कैफियत देखकर तमाम मालूमात मुश्तरका कमान तक पहुँचाऊँ। मैं आ गया। मेरे साथी यहाँ का नक्शा तैयार कर चुके थे। उन्होंने ये भी मालूम कर लिया था कि आप अपने दुश्मन की फ़ौज इस जगह लाकर लड़ाना चाहते हैं जो चट्टानों में घिरी हुई है। मैंने चट्टानों पर छुपे हुए आपके तीरंदाज और मिंजनीकें भी देखी थीं। उसके आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं पकड़ा गया हूँ तो महसूस किया है कि मैं गुनाह कर रहा था। आपकी बातों ने मेरे अंदर ईमान की हरारत बेदार कर दी है। अगर मेरा बाप अपनी बेटियों को बेचकर दौलतमंद न बनता तो मेरा ईमान कायम रहता। ये गुनाह मेरे बाप का है। सुल्तान, आपका इकबाल बुलंद हो, मुझे गुनाह का कफारा अदा करने का मौका दो। सुल्तान अय्यूबी ने हसन बिन अब्दुल्ला को इशारा किया तो आजर को खैमे से बाहर ले गए। उसी रोज आजर को दमिश्क को रवाना कर दिया गया। उसके साथ 2 मुहाफिज थे। तीनों घोड़ों पर सवार थे। आजर के हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। सूरज गुरूब होने से जरा पहले वो आधा रास्ता तय कर चुके थे। रात के लिए रुकना था। रास्ते में दोनों मुहाफिज उससे सुनते रहे कि उसका जुर्म क्या है। आजर ने उनके साथ जज्बाती सी बातें करके उन्हें मुतासिर कर लिया था। शाम के वक्त आजर ने उन्हें कहा कि थोड़ी सी देर के लिए वो उसके हाथ खोल दें। मुहाफिजों ने इस ख्याल से उसके हाथ खोल दिए कि ये निहत्ता है, भागकर कहां जाएगा। उन्होंने दूसरी एहतियात ये की कि उसे घोड़े से उतार लिया। वो पैदल तो भाग नहीं सकता था। वो बैठ गए और उनके पास खाने के लिए जो कुछ था खाने लगे। आजर ने मौका देख लिया और अचानक उठकर बहुत ही तेजी से दौड़ा। घोड़े करीब ही खड़े थे। आजर एक सानिये में घोड़े पर सवार हो गया। मुहाफिज पहुंच तो गए लेकिन आजर ने घोड़े को एड़ लगाकर रुख उनकी तरफ कर दिया। वो दोनों इधर उधर हो गए और अपने घोड़ों तक बर वक्त न पहुंच सके। जितनी देर में वो घोड़ों पर सवार हुए उतनी देर में आजर बहुत सा फासला हासिल कर चुका था। मुहाफिजों ने घोड़े भगाए लेकिन अब ताक़ुब बेसूद था। शाम गहरी होने लगी थी। जमीन ऊंची नीची थी। कहीं कहीं टीले और चट्टानें भी थीं। मुहाफिज दूर तक गए मगर आजर गायब हो चुका था। दूसरे दिन दोनों मुहाफिज सर झुकाए हुए, शिकस्त खुर्दा और बुरी तरह थके हुए हसन बिन अब्दुल्ला के पास पहुंचे। एक ने कहा, हमें गिरफ्तार कर लें, कैदी भाग गया है। उन्होंने ये भी बता दिया कि कैदी के कहने पर उन्होंने उसके हाथ खोल दिए थे। हसन बिन अब्दुल्ला ने उन्हें हिरासत में ले लिया लेकिन घबराहट से उसका पसीना निकल आया क्योंकि आजर मामूली किस्म का कैदी नहीं था। वो सुल्तान अय्यूबी का सारा प्लान अपने साथ ले गया था। फतह शिकस्त का दारोमदार इस प्लान पर था। हसन बिन अब्दुल्ला सुल्तान अय्यूबी को बताने से डर रहा था कि पकड़ा हुआ जासूस हाथ से निकल गया है और अपने सारे मंसूबे बेकार हो गए हैं। छुपाना भी ठीक नहीं था। सुल्तान अय्यूबी को जब हसन बिन अब्दुल्ला ने बताया कि कैदी भाग गया है तो सुल्तान के चेहरे का रंग बदल गया।
कितनी ही देर उनकी जबान से एक लफ्ज ना निकला। उठकर खैमे में टहलने लगे। उस दौर का एक विकाय निगार असद अल असदी लिखता है, सुल्तान अय्यूबी इंतहाई खतरनाक सूरत हाल में भी घबराते नहीं थे, लेकिन इस जासूस के भाग जाने की खबर सुनकर उनके चेहरे से खून गायब और आंखें बेनूर हो गईं। खैमे में टहलते टहलते वो रुक गए और आसमान की तरफ देखकर बोले, खुदाए जुल जलाल, क्या यह इशारा है कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊं? क्या तेरी जाते बारी ने मेरे गुनाह बख्शे नहीं? मैंने कभी हथियार नहीं डाले थे, कभी पसपा नहीं हुआ था। फिर उनकी आवाज रुंधिया गई। उन्हें शायद गैब का कोई इशारा मिल जाया करता था, जो इस मौके पर भी मिला। उन्होंने हसन बिन अब्दुल्ला से कहा, उन दोनों सिपाहियों को ज्यादा सजा न देना। सजा से बचने के लिए वो मफरूर हो सकते थे, लेकिन वो तुम्हारे पास आ गए। उन्हें गलती की सजा जरूर देना, नेक नियति और सच बोलने का सिला भी जरूर देना। सालारों को बुलाओ। उनके चेहरे पर रौनक और आंखों में चमक ऊद कर आ गई। 3 सालार आ गए। सुल्तान अय्यूबी ने उनसे कहा, वो जासूस भाग गया है जिसके पास दिफाई मंसूबा था। उसने जो नक्शे बनाए थे वो हमारे पास रह गए हैं। उसने अपनी आंखों से बहुत कुछ देख लिया था और उसे ये भी मालूम हो गया था कि हम दुश्मन को कहाँ लाकर लड़ाना चाहते हैं। भागने वाले के 2 साथी अभी भी हमारे पास हैं। हसन बिन अब्दुल्ला उन्हें अभी यहीं रखना चाहता था। अब हमारे लिए सूरत ये पैदा हो गई है कि हमने दुश्मन के लिए जो फंदा तैयार किया था वो बेकार हो गया है। वो अब कुरून के अंदर नहीं आएगा। हो सकता है वो हमें मुहासरे में ले ले और हमारी रसद का रास्ता रोक ले। मुझे मशवरा दो कि हम अपना मंसूबा बदल दें या उसी पर कायम रहें। तीनों सालारों ने अपने अपने मशवरे दिए जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। सिर्फ इस बात पर तीनों मुत्तफिक थे कि प्लान बदल दिया जाए। सुल्तान अय्यूबी ने इत्तफाक न किया और कहा कि प्लान बदलने के लिए वक्त चाहिए। खतरा यह है कि इस दौरान दुश्मन ने हमला कर दिया तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। खुली जंग लड़ने के लिए फौज कम थी, लिहाजा फैसला यह हुआ कि प्लान में कोई तब्दीली न की जाए। इसकी बजाय छापामारों को हुक्म दिया गया कि वो वसी पैमाने पर शबखून मारें और वो दुश्मन की मुश्तरका कमान के मरकज और तीनों फौजों के मरकजों पर ज्यादा शबखून मारें। रसद के रास्ते को और ज्यादा महफूज कर लिया जाए। उन्होंने छापामारों के सालार से कहा कि वो अपने उस दस्ते को ले आए जिसे मटके तोड़ने का काम सौंपा गया था। सालार नए अहकाम लेकर चले गए। सुल्तान अय्यूबी ने ये अहकाम खुद एतमादी से दिए थे, लेकिन वो बहुत परेशान थे। उन्हें पूरा यकीन था कि भागने वाले जासूस ने उनका सारा प्लान तबाह कर दिया है और अब मालूम नहीं क्या होगा। कुछ देर बाद 12 छापामारों का एक जैश उनके सामने लाया गया। सलीबियों ने हलब वालों को आतिशगीर मादे के जो मटके भेजे थे वो मैदान जंग में लाए गए थे। सुल्तान अय्यूबी के जासूसों ने यह जखीरा देख लिया था। उन्होंने कहा था कि जब दुश्मन हमला करे तो ये जखीरा तबाह कर दिया जाए। इसके लिए 12 जांबाज और जुनूनी किस्म के छापामार मुंतखब किए गए और उन्हें सुल्तान अय्यूबी के सामने लाया गया। उन्होंने देखा और एक छापामार को देखकर मुस्कुराए और बोले, अंतानून, तुम इस जैश में आ गए हो? मुझे इस जैश में आना चाहिए था। अंतानून ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने गुनाह का कफारा अदा करूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, सुल्तान अय्यूबी ने छापामारों से कहा, तुमने कहां कहां कुर्बानियां नहीं दी, लेकिन अब मजहब और मिल्लत की आबरू तुमसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रही है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।